Good afternoon. So, in the last lecture, what we learned? Male and female reproductive part of a flower. So, we were dealing with which chapter, Jigan? Sexual reproduction in flowering plants. तो आज की क्लास में आगे मतलब fertilization तक हम पढ़ने के लिए जा रहा है. We divided the chapter into three segments. You remember? Fertilization के पहले pre-fertilization events, fertilization and post-fertilization events. So in the very first class itself, what we learned about what are the parts of a flower. Plants have four different parts. Which are they? Sakshi. Two essential whorls are androecium, gynoecium. Two accessory whorls are calyx and corolla. Then coming to the male reproductive part, technically called androecium. Biologically, it is stamen. Stamen has two parts, anther and filament. Okay. Then inside the anther, you can see four microsporangia. There are four layers for microsporangium. Which are they? Epidermis, endothecium, middle layers, tapetum. What is the function of tapetum? Provide nourishment to the sporogenous tissue. There is microspore mother cell or pollen mother cell. You can see inside the microsporangium. Pollen mother cell meiotically divide and give rise to microspore tetrad. Each microspore tetrad can become a mature pollen grain. Immature pollen grains are called a microspore. Okay. Then after becoming pollen grains, how they become, how will their structure looks like? See, you can see two different layers are protected. Which are the names of these layers? Exine and the indine. Exine is made up of which substance, Sakshi? Sporopollenin. Sporopollenin is an extremely resistant layer. It is resistant to heat. It is resistant to alkali, acids. No enzyme can digest this layer. The inner layer is called intine. Intine is made up of what, Neha? Cellulose and the pectin. Inside that you can see two cells. Which are the two cells, Jian? Very good. Vegetative cell and the generative cell. Generative cell mitotically divide and give rise to two male gametes. Okay. So in 60% of the angiosperms, they are shed in such a way that one generative and one vegetative cell will be there, two celled stage. But in 40% of the angiosperm, divide होके two male gametes and one vegetative cell, वो stage में ही release हो रहा है. उसमें ना, this slide was yet to discuss here. Have you seen? This is the structure of the pollen grain, which was asked for this year's exam also for CBSE. And here you can see one thing. Pollen grains sometimes cause allergy. For some people, pollen grains are allergic. Allergy causing substances are called allergens. So which pollen grain can cause allergy? That you, first of all, you have to study. Have you heard about carrot grass, otherwise called the Parthenium? Parthenium or carrot grass. It is a plant, weed, unwanted plant होता है. उसकी pollen grains asthma and bronchitis cause करते हैं. एग्जाम में पूछता है which plant pollen grain causes asthma and bronchitis? इसको asthma plant बोलते हैं. That is this one, bronchitis and respiratory illness, asthma cause करते हैं Parthenium. Now, what about pollen viability? For plants like rice and wheat, their stamens are viable only for 30 minutes after the dehiscence. Dehiscence is the process of release of stamen, pollen grains. अगर pollen grains बाहर आया तो बस 30 minutes ही live रहता है for some plants like rice and wheat. But plants belonging to the family Solanaceae, जो last year पढ़ा, Leguminosae, that means pea family, and Rosaceae, rose flowers की family. These three family की flowers की pollen grains महीनों तक viable रहता है. They can stay viable for even many months. So in between any of this time, they can do fertilization. Okay. Now pollen grains can be, they have vegetative cell, right? Vegetative cell has a food reserves inside the cytoplasm. So pollen grains can be used as a nutrition source also. In many products, we can make many pollen syrups and pollen tablets using pollen grains.
These pollen syrups and pollen tablets or pollen products are consumed by athletes जिसको न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ज्यादा रहता है, जो those who are gym goers or we can say those who are health conscious, they can more consume this kind of nutritious food. So pollen grain can also be used as a nutrition source. उसका टैबलेट सिरप सब बनाते हैं मार्केट में. एंड पोलन ग्रेन को ज्यादा सालों तक प्रिजर्व करना है तो भी हमारे पास एक ऑप्शन है, दैट इज लिक्विड नाइट्रोजन में क्रायो प्रिजर्वेशन करना. क्रायो का मतलब है लो टेम्परेचर. सो लिक्विड नाइट्रोजन हैज ए boiling point of minus 196 डिग्री सेल्सियस. इट्स अ फ्रीजिंग पॉइंट. सो ये माइनस 196 के टेम्परेचर में लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं इवन फॉर ईयर्स. ओके, वी कैन डू द सेम टेक्निक फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ sperm and ovum also. Seeds, sperm, ovum, pollen grain, everything can be preserved in liquid nitrogen. इसका freezing point पूछता है minus 196 degree Celsius. Okay. Now, coming to फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. उसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, दैट मींस द गाइनोशियम, दे हैव थ्री पार्ट्स. ओवरी के अंदर लोक्यूल्स रहता है, लोक्यूल्स में प्लासेंटा रहता है, प्लासेंटा में ओव्यूल्स अटैच्ड है. द अटैचिंग सरफेस ऑफ द ओव्यूल टू द प्लासेंटा इज कॉल्ड अ फ्यूनिकल. देन एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखा तो ऐसा दिखता है. ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम बोलता है. इसके अंदर थ्री लेयर्स रहता है. आउटर इंटरगुमेंट, इनर इंटरगुमेंट, न्यूसेलस, एंड इनसाइड दिस इज द एम्ब्रियो साक. एम्ब्रियो साक के अंदर एग पाए जाते हैं. सो हियर यू कैन सी थ्री लेयर प्रोटेक्शन देख सकते हैं. न्यूसेलस की फंक्शन है एम्ब्रियो साक को नरिशमेंट प्रोवाइड करना. आउटर एंड इनर इंटरगुमेंट का फंक्शन है जस्ट प्रोटेक्ट करना. एम्ब्रियो साक में पोलन माइक्रोस्पोर मदर सेल रहता है, सॉरी मेगास्पोर मदर सेल रहता है. माइक्रोस्पोर तो स्टेमन में रहता है ना. मेगास्पोर मदर सेल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द एम्ब्रियो साक. मेगास्पोर मदर सेल को मियोटिक डिविजन होना चाहिए so that it will produce 4 megaspore. Out of this 4 megaspore, how many are functional, नेहा? Only one is functional, 3 will be degenerated. जो एक फंक्शनल है वो आगे जाके क्या बनाएगा? तीन बार माइटोटिक डिविजन करके 8 न्यूक्लियस कंडीशन में आ जाएगा. ये 8 न्यूक्लियस कंडीशन होने के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होके 3 सेल्स ऊपर कैलासल पोल में, 3 सेल नीचे माइक्रोपाइलर पोल में बनता है. ऊपर कैलासल पोल में जो 3 सेल्स रहता है उसका नाम है एंटीपोडल्स. वेरी गुड. नीचे माइक्रोपाइलर एंड में 3 सेल्स है, उसमें मिडिल सेल का नाम, मिडिल सेल इन द माइक्रोपाइलर पोल इज कॉल्ड द एग. यू फॉरगॉट इट. उसकी लेफ्ट एंड राइट में जो सेल रहता है उसको सिनर्गिड्स बोलता है. तो नीचे 2 सिनर्गिड एंड एग, ऊपर 3 एंटीपोडल, 6 सेल्स हो गया. सातवीं सेल्स ये सेंटर में जो रहता है सेंट्रल सेल है, वहां पे 2 न्यूक्लियस और रहता है, दैट इज पोलर न्यूक्लियाई. तो न्यूक्लियाई काउंट किया तो ऊपर 3, मिडिल में 2, नीचे 3, 3 2 3, दैट इज 8 हो चुका है. तो 7 सेल प्लस 8 न्यूक्लियस कंडीशन में होता है टिपिकली एन एंजियोस्पर्म की एम्ब्रियो साक. इतना अच्छे से समझा? यहां तक डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. ओवरऑल रिविजन हो गया 10 मिनट में, सब दिमाग में है. अभी आगे जाऊं मैं क्या? तो आज की क्लास में सबसे पहले हम डिस्कस करने के लिए जा रहा है pollination. Okay, because we studied about how pollen grains are made, we studied about how egg is made, male and female gametes are now ready. अभी क्या करना है? एक दूसरे से मिलना चाहिए, then only that zygote formation that happens. So pollination is the transfer of pollen grains from the anther to the stigma. Pollination is the transfer of pollen grains from the anther to the stigma. Okay, so pollination दो प्रकार का हो सकता है. सेल्फ pollination भी होगा and otherwise cross pollination can also be taken place. अगर सेल्फ pollination है तो एक ही सेम फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर में कौन कौन होता है? स्टेमन भी रहता है, कार्पल भी रहता है. सो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को अपने आप pollination कर सकते हैं. They have the pollen grains will be transferred from the stamen of the same flower to the stigma of the same flower. Okay, that is one condition. Okay, otherwise क्या हो सकता है? क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है.
क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स एक प्लांट की स्टिग्मा से स्टेमन से दूसरी प्लांट की स्टिग्मा में गिर रहा है. सो क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन का डिफरेंस समझा. सेल्फ पॉलिनेशन सेम प्लांट सेम फ्लावर के अंदर हो रहा है. क्रॉस पॉलिनेशन सेम स्पीशीज की दो डिफरेंट प्लांट्स में के बीच में हो रहा है. सबको अपना अपना एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज तो रहता ही है. सो क्रॉस पॉलिनेशन को हमें सीनोगमी बोल सकते हैं. क्रॉस पॉलिनेशन का टेक्निकल टर्म क्या है? सीनोगमी, XENO, सीनोगमी. सेल्फ पॉलिनेशन और दो प्रकार का हो सकता है, ऑटोगमी एंड जीटनोगमी. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन आर देयर? ऑटोगमी एंड जीटनोगमी. लेट मी एक्सप्लेन. यहाँ पे देखो, दिस इज द स्टेमन, दिस इज द स्टिग्मा. ओके, सेम फ्लावर में स्टेमन भी है, स्टिग्मा में, दैट मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है. So the pollen grains will be transferred from the anther to the stigma of the same flower. This condition is called the autogamy. तो autogamy कैसे दिखता है? Pollen grains will be transferred from anther to the stigma in the same flower, same plant. That is called the autogamy. Self gamos, autogamy. Gamos मतलब marriage, self transfer. So pollen grains are transferred from the anther to the stigma of same flower. याद रखो. What about जीटनोगमी? जीटनोगमी में क्या होता है कि एक ही प्लांट में दो डिफरेंट फ्लावर्स में ड्रॉ कर रहा हूं. अगर pollen grains are transferred from the anther to the stigma of different flower in the same plant, plant same है, वो एंड में लिखना है. plant same but the flowers are different. एक ही प्लांट में मल्टीपल फ्लावर्स होगा ना, तो एक फ्लावर की अंदर से दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा में गिर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड जीटनोगमी. So if plant and flower are the same, then it is completely this one, autogamy. If plant is same but the flowers are different, एक ब्रांच की एक फ्लावर, दूसरे ब्रांच की दूसरा फ्लावर, उसके बीच में पोलिनेशन हो रहा है, तो दैट इज जीटनोगमी. अभी दो डिफरेंट प्लांट है सेम स्पीशीज का, एंटायरली दो जगह पे डिफरेंट प्लेसेस में लोकेट किया हुआ प्लांट है, तो दैट इज क्रॉस पोलिनेशन यानी जीनोगमी. तो सेल्फ पोलिनेशन की दो टाइप समझा. क्या है दो टाइप? यू टेल मी जियान. सेम फ्लावर में भी हो सकता है, एक प्लांट की डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में भी हो सकता है. सेम फ्लावर में हो रहा है तो ऑटोगमी, डिफरेंट फ्लावर्स में हो रहा है तो जीटनोगमी, डिफरेंट प्लांट की फ्लावर्स में हो रहा है तो सीनोगमी. ये तीनों समझा. बट प्रोवाइडेड सबका स्पीशीज सेम होना चाहिए. स्टूडेंट्स ऑलवेज कंफ्यूज लाइक, मैं सीनोगमी का डेफिनेशन क्या बोला? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लांट टू अदर प्लांट. बट प्लांट मतलब कभी भी रोज की स्टेमन को जास्मिन की स्टिग्मा के अंदर गिर नहीं सकते हैं. गिरा तो भी उसमें कुछ होगा ही नहीं. सो इट शुड बी ऑफ द सेम स्पीशीज, वो दिमाग में रखना. सेम स्पीशीज का डिफरेंट प्लांट्स में गिराते हो ही पोलिनेशन बोलते हैं. या देन थोड़ा जूम कर देता हूं. सी, जीटनोगमी
is the transfer of pollen grain from anther to the stigma of another flower of the same plant. I hope you will write the same plant thing. बोथ द जगह पे सेम प्लांट है, लेकिन ये सेम फ्लावर है, वो डिफरेंट फ्लावर है. दैट्स द डिफरेंस. ओके, सो जस्ट लुक एट दिस illustration here. Different flower में हो रहा है. This is which one will be? Is this auto, gitno or sino? The first one. Neha, to answer me. This first image shows auto, gitno or sinogamy. Very good, gitnogamy, because one flower से दूसरे flower में जा रहे हैं. Okay. Then look at the middle portion, Jian. What will be? इस plant की इस flower से दूसरे plant की flower में जा रहा है. Plant different है, flower भी different है. So which one it will be? Autogamy. Cross pollination का दूसरा नाम क्या है? Synogamy. This is synogamy. अभी एक ही सेम प्लांट के स्टेमन सेम ही प्लांट की स्टिग्मा में गिर रहा है, तो दैट इज प्राची, सॉरी पूर्वा, हाँ, ऑटोगमी. सो यहाँ पे ऑटोगमी, यहाँ पे सीनोगमी, यहाँ पे जीटनोगमी. डायग्रामेटिकली पूछता है एग्जाम में, डायग्राम दिखा के हमेशा, हर साल. आई हैव सीन दिस क्वेश्चन रिपीटेडली इन डिफरेंट ईयर्स, रिसेंट ईयर्स. तो ये अच्छे से पढ़ना, ऑटो, जीटनो एंड सीनोगमी. कुछ डाउट नहीं है ना? डायग्राम ड्रॉ करके रखा है, रफ डायग्राम. ओके, नाउ रेडी? आगे जाऊं या मोर टाइम चाहिए? यू वांट टू राइट? हो गया. ओके, नाउ in some flowers like viola, oxalis, commelina. Read viola, oxalis, commelina. Orchid की flowers है. Oxalis is the viola is also this one orchid की तरह दिखता है. Common pansy है उसका common name. So viola, oxalis and commelina में क्या होता है कि दो प्रकार की फूल आते हैं. Two types of flowers. Some flowers are like normal flowers, वो bloom होने के बाद ऐसे क्या होता है, completely open होता है, petals are showy, they will expose their anthers. So if the petals are opening completely, if the flower is exposed to the surrounding completely, if the flowers are getting opened after maturation, open हो सकता है flowers like any other plant we can see, that is called a chasmogamous flowers. CHASMOGAMOUS flower, chasmogamous. But इसी same plant की some branches में you can see flowers which are not going to open at all. हमेशा they remains closed. So within a single plant itself, some flowers are open, some flowers are closed. Open flowers are called chasmogamous. Closed flowers are called clistogamous. Clistogamous की spelling देखा? Clistogamous. Okay. So one more thing you can correlate is closed clisto. दोनों में Cl तो रहता ही है. So it will not be confused. Sometimes after studying many chapters you will be thinking open flowers chasmogamous था या clistogamous था. So you will not be getting confused if you remember this mnemonic. Closed flowers are clistogamous. Open flowers दूसरा chasmogamous. समझा? So open flowers है तो उसको क्या कर सकते हैं? It can do, क्या हुआ? Nothing. It can do cross pollination also. Open flowers can do cross pollination also because उसमें pollinating agents like wind, honeybee and butterfly can come and visit the flowers. They can transfer the pollen grains. One plant to another plant transfer कर सकते हैं. So chasmogamous flowers can do autogamy, synogamy, geitonogamy, सब कुछ हो सकता है. But tell me the condition if it is clistogamous. Only one possibility is flower is not going to open at all. So only one possibility is there. What type of pollination can happen in clistogamous flowers? ये पूछता है. Which one? Only autogamy. अगर वो फूल खिला तो then it can do geitonogamy and synogamy. It completely closed है तो उसका ही stamens उसका ही stigma में ट्रांसफर करना. That is the only way to get pollination.
समझा? So clistogamous flowers, they do not open at all, they don't require pollinators, they will do autogamy. Understood? Then what about chasmogamous flowers? They have exposed anther and stigma, they will open so that they can do self जीटनोगमी, क्रॉस पोलिनेशन, सब कुछ कर सकते हैं. सो ऐसे एक ही प्लांट में दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स कुछ कुछ प्लांट्स बनाते हैं. उस प्लांट्स के एग्जांपल्स आर वायोला, ऑक्सालिस, कोमलिना. समझा? ये पूछा है एग्जाम में. नाउ once again I am going to explain the pollination happening in clistogamous flowers. इसके पहले का स्लाइड क्या था? Clistogamous flowers में कैसा है? They will not open, right? So what happened? Anther dehisces in the flower bud itself. Then what happened? Pollen grains come in contact with the stigma of the unopened flower. Assured production of seed set. हाँ, ये भी पूछ सकते हैं कि कैस्मोगामस या क्लिस्टोगामस सीड कौन 100% पॉसिबिलिटी किसको है सीड प्रोडक्शन का? मतलब पोलिनेटर्स नहीं है तो भी पोलिनेशन करने का ताकत किसको रहता है? क्लिस्टोगामस को ही रहता है. तो अश्योर्ड सेट है, 100% अश्योरेंस है. पोलिनेटर्स हो या ना हो वहां पे सीड्स हो जाएगा. दैट फ्लावर्स विल फॉर्म, ovary will form fruit and the ovule becomes seed. That's it. While chasmogamous तो 100% अश्योरेंस तो दे नहीं सकते. क्या सारा फ्लावर्स फ्रूट बन जाएगा? नहीं ना. इट डिपेंड्स पोलिनेशन हो रहा है या नहीं हो. ओके, यस. सेल्फ पोलिनेशन अच्छा भी है बुरा भी है. लाइक सोशल मीडिया वी कैन से अच्छा भी है बुरा भी है. सो सेल्फ पोलिनेशन की अच्छी अच्छी चीजें पहले बोलता हूं. नेहा, कैन यू रीड द एडवांटेजेस वन बाय वन? बोलना जोर से पढ़ो, दिख नहीं रहा है. पूर्वा, हाँ नहीं मैं जूम किया तो दिखेगा. हाँ तो फिर नेहा को पढ़ सकते हैं. चल okay, it maintains parental characters और purity of the race. सेल्फ पोलिनेशन कर रहा है तो क्या नहीं होता? मिक्सिंग अप ऑफ पेरेंट डिफरेंट प्लांट्स की कैरेक्टर्स नहीं हो रहा है. एक ही प्लांट की एक ही फ्लावर के अंदर चल रहा है ना. सो मोर एंड मोर प्योर लाइन्स बोलते हैं उसको. सो देयर इज नो मिक्सिंग अप ऑफ मोर कैरेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स. सो दे आर बिकमिंग प्योर रेस. इट इज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स. हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो आज हम पढ़ेंगे. उसके लिए हमें प्योर प्लांट्स चाहिए. You will get to know only pures if you understand genetics. For example, have you studied genetics in 10th standard? Do you know toll can be represented in two different ways? Toll, capital T भी toll है, capital T small t भी toll है. देखा इसमें प्योर कौन है? कैपिटल T. समझा? तो प्योर दोनों अलील कैरेक्टर की दोनों अलील जीन्स रिप्रेजेंट करने वाला अलील दोनों सेम होना चाहिए. दैट इज प्योर. तो प्योर अलील्स बनाने के लिए ही चाहिए. सेल्फ पोलिनेशन करते हैं. द प्लांट्स डू नॉट हैव टू प्रोड्यूस, बोलना, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पोलन ग्रेन्स. सेल्फ पोलिनेशन करना है ना तो सेल्फ पोलिनेशन में पोलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करने का जरूरत नहीं. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, सम फ्लावर्स अगर क्रॉस पोलिनेशन करना है तो नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स ज्यादा होना चाहिए. देन ओनली पोलिनेशन हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल विंड लेके जा रहे हैं पोलन ग्रेन्स को. यू जस्ट इमेजिन. सो कभी कभी इधर उधर वेस्टेज होता है ना पोलन ग्रेन्स का. कुछ कुछ अनवांटेड सरफेस पे स्टिक हो सकता है. तो वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स हो जाएगा इफ इट इज डिपेंडिंग ऑन एक्सटर्नल एजेंसीज फॉर पोलिनेशन. यहाँ पे तो कैसा है, पास पास ही है ना स्टिग्मा एंड पोलन ग्रेन. सो ऑटोमेटिकली जल्दी उसको कॉन्टैक्ट में आने का चांसेस ज्यादा है. सो कम अमाउंट में कम नंबर में पोलन ग्रेन्स बनाया तो भी हो जाएगा pollination. That's it. Then flowers do not have to develop characteristics to attract pollination. ऐसा showy type flowers, बहुत bright colored corolla, nectar, fragrance, ये सब कुछ बनाने का जरूरत कुछ नहीं है because वो pollinators के बिना भी pollination कर सकते हैं. Now then assured seed production. Pollinators हो या ना हो
फर्क नहीं पड़ेगा, सेल्फ पॉलिनेशन में सीड सेट अश्योर्ड होता है। देन इट एलिमिनेट्स अनडिसाइरेबल रिसेसिव कैरेक्टर्स। रिसेसिव कैरेक्टर मतलब मैं थोड़ी देर पहले बोला ना, स्मॉल टी दैट्स अ रिसेसिव एलील। स्मॉल टी हटा के कैपिटल टी आने के लिए, मतलब प्योर लाइन आने के लिए हमने सेल्फ पॉलिनेशन किया ना। सो इफ इन देयर जीन स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करने वाला जीन से, तो मतलब रिसेसिव कैरेक्टर से, तो हम ऐसे सेल्फ पॉलिनेशन करके 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 वो रिसेसिव कैरेक्टर को हटा सकते हैं उस प्लांट से। We can eliminate the entire character which is recessive in nature by doing self pollination. Okay, समझा सेल्फ पॉलिनेशन की फायदा। अभी देखो सेल्फ पॉलिनेशन की प्रॉब्लम्स पूछता है हर साल एग्जाम में, तो प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। जियान, रीड द डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। Okay. First point, there will be no introduction of new characters. See, सेल्फ पॉलिनेशन क्या कर रहा है, ऑलरेडी एक्सिस्टिंग कैरेक्टर्स को प्योर बना रहा है। सो अगर डिफरेंट प्लांट्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं आ रहा है, तो देन न्यू कैरेक्टर्स आर नॉट गोइंग टू ऐड इनटू देयर जीन जर्म प्लाज्म। सो उसकी जेनेटिक्स में अभी एक्सिस्टिंग जो कैरेक्टर्स है वही कैरेक्टर्स का एक्सचेंज ही हो रहा है अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो। बट थिंक ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, दो डिफरेंट प्लांट है ना, तो दोनों का कैरेक्टर्स आने का चांसेस है और मोर एंड मोर वेरिएशंस आने का चांसेस है। सो समझा, कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ेगा इफ मतलब द वैरायटी और वी कैन से द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्रीज होगा इफ वी आर डूइंग क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किया तो कैरेक्टर्स बढ़ता नहीं, समझा। देन देयर कैन बी डिक्रीज्ड इम्यूनिटी टू डिसीज। इम्यूनिटी कम रहेगा, डिसीज रेसिस्टेंस कम रहता है। सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर प्रोन टू डिसीजेस, जल्दी बीमार होता है, दे विल बी अफेक्टेड बाय डिसीजेस। इट माइट लीड टू डिक्रीज्ड अडेप्टेबिलिटी टू चेंज इन एनवायरनमेंट। बोला ना, वेरिएशन नहीं होता है, न्यू कैरेक्टर नहीं होता है, तो फिर एवोल्यूशन भी नहीं होता। आई होप यू नो, एवोल्यूशन के लिए नया कैरेक्टर्स ऐड होना है, मतलब देयर शुड बी वैरायटी, वेरिएशंस होना चाहिए। बट इफ देयर इज नो वेरिएशन देन उसमें कुछ चेंज ही नहीं है, एवोल्यूशन भी नहीं रहेगा। सो चेंजिंग एनवायरनमेंट में उसको सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रीम ड्राउट आया, फ्लड आया, हीट आया, सच कंडीशंस में वो गायब हो जाता है, मतलब दे विल गो एक्सटिंक्ट और डिसअपियर। देयर विल बी अ डिक्रीज्ड वेरिएबिलिटी, आई टोल्ड यू वैरायटी कम है। ओके, सो वैरायटी एंड एवोल्यूशन उसको स्लो रहेगा। तो ये सब वन मोर चीज में ऐड करूं, अगर कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो दैट इज द मेन पॉइंट, वो लिखना है, इट कॉजेस इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अभी यहाँ पे क्यों बताया नहीं है कि उसके लिए एक सेपरेट टॉपिक आ रहा है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तुम लोग बाकी सब कुछ भूल गया तो भी चलेगा, बट नेवर फॉरगेट सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यूअसली हो रहा है तो देयर ऑकर्स अ कंडीशन कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब, मान लो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, सेम फ्लावर की बीच में जो पॉलिनेशन हो रहा है वही है, तो उससे जो सीड हो गया उससे नया प्लांट बन जाएगा, उस प्लांट को सेकंड टाइम भी वही हो रहा है, सेकंड जनरेशन में भी क्रॉस पॉलिनेशन सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन किया, उससे सीड बन गया, वो सीड मिट्टी में डाला, नया प्लांट हो गया, उस प्लांट में भी हमने सेल्फ पॉलिनेशन किया, मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेल्फ पॉलिनेशन ही कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, एंड में जो प्लांट हो गया आफ्टर 10 जनरेशन समथिंग, दैट प्लांट को फर्टिलाइजेशन पावर नहीं रहेगा, दे विल बी स्टराइल, इनफर्टाइल रहेगा, मतलब उसको आगे सेल्फ पॉलिनेशन भी नहीं कर सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन भी नहीं कर सकते, ऐसा कंडीशन में आ जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ओके, एनिमल्स के केस में भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं, जस्ट थिंक, एक डॉग की ब्रीड, से एन एग्जाम्पल ऑफ ए डॉग की ब्रीड और कैट की ब्रीड, कुछ तो है ना तुमको, कौन, गोल्डन रिट्रीवर। एक गोल्डन रिट्रीवर को दूसरे गोल्डन रिट्रीवर के साथ, सेम स्पीशीज है ना, उसके साथ क्रॉसिंग किया, ओके, बट दैट्स एक्चुअली क्रॉस ब्रीडिंग। हाँ, अगर सेम जीनस की सिबलिंग्स के बीच में, सेम पेरेंट्स की दो बच्चे हैं ना, सेम कैरेक्टर्स के बीच में अगर ऐसे हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन की तरह हो जाएगा ना, अगर सेम पप्पी की सिबलिंग्स के बीच में मीटिंग किया, दैट बी कंटिन्यूड फॉर
डिफरेंट जनरेशन, एट द एंड में जो पपी हो रहा है उसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। तो इसलिए सिबलिंग्स के बीच में मीटिंग नहीं करते हैं ना, नॉर्मल कॉमन सेंस। ओके, बिकॉज दैट विल बी सिमिलर टू द सेल्फ पोलिनेशन एक्चुअली। ओके, हाँ, सो सेल्फ पोलिनेशन विल कॉज इनफर्टिलिटी, दैट इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। समझा? इसे मत लिखो कि प्लांट्स डिप्रेशन में चले जाएंगे सेल्फ पोलिनेशन किया तो। इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज द लॉस ऑफ फर्टिलिटी। सो कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं? व्हाट वी हैव टू प्रमोट? सेल्फ पोलिनेशन प्रमोट नहीं कर सकते, देन व्हाट वी हैव टू एडवाइस द प्लांट्स? प्लांट्स को एडवाइस हम देना है कि मत करो सेल्फ पोलिनेशन, करो क्रॉस पोलिनेशन करो। तो क्रॉस पोलिनेशन इज कॉल्ड द सीनोगमी। प्लांट्स हमारा सुनता है क्या, वही पूछ रहे हैं नहीं। ओके, सो क्रॉस पोलिनेशन सीनोगमी बोलते हैं। स्ट्रेंज मैरिज, पता होगा ना स्ट्रेंज मैरिज का मतलब? डिफरेंट प्लांट्स के बीच में हो रहा है पोलिनेशन। अरेंज्ड मैरिज। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द anther of stigma of the one plant to the stigma of a different plant। इसके लिए एक्सटर्नल एजेंट्स का जरूरत पड़ेगा। सो एजेंट्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन पहले डिस्कस करते हैं। मतलब पोलिनेटिंग एजेंट्स हु हेल्प्स इन क्रॉस पोलिनेशन, बोथ अबायोटिक एंड बायोटिक एजेंट्स आर देयर। मतलब जिंदा हुआ एजेंट्स को बायोटिक एजेंट्स, नॉन लिविंग एजेंट्स को अबायोटिक एजेंट्स बोलता है। इफ ये डिफरेंट बायोटिक एजेंट्स की नाम डिस्कस करना है तो जस्ट रीड दिस स्टेटमेंट। जियान, व्हाट इज दिस? एंटोमोफिली। कैन यू गेस व्हाट इज एंटोमो? एंटोमोलॉजी इज रिलेटेड टू व्हाट? एंटोमोलॉजी, entomology is the study of insects, so entomo is the word related to insect, so insect pollination की नाम है entomophily। phily मतलब loving, affinity, showing affinity to insects, such kind of pollination are called a entomophily। what about this one? Ornithophily। what is ornithology? the study of birds, so birds द्वारा pollinate करते हैं वो। what is this? Chiropterophily। Chiroptera is the order of bat। order है ना, kingdom, phylum, class, order, वो वाला order, it's the order of bat। तो bat से द्वारा pollination कर रहा है तो that is Chiropterophily। they all are abiotic, sorry biotic, living है ना, insect भी, bird भी, bat भी। so and you know elephant से भी pollination करते हैं एक flower, सबसे दुनिया की सबसे बड़ा flower। you know the name? you don't know the name of largest flower? वो जो गूगल करके आ, नेक्स्ट टाइम मैं पूछता हूँ। ठीक है, अभी मत करो, बाद में। ठीक है, नाउ एबायोटिक एजेंट्स देखते हैं। पूर्वा, एनिमोफिली, क्या एनिमल से पोलिनेट करते हैं? नहीं, इट्स एबायोटिक, राइट? एनिमो मतलब विंड, एनिमोमीटर, इट्स द डिवाइस यूज्ड टू मेजर द विंड स्पीड। एनिमो इज द वर्ड रिलेटेड टू विंड, विंड पोलिनेशन। हाइड्रो, यस, वेरी गुड, पानी की वजह से पोलिनेशन होता है। so these two are the abiotic agent, these three are the biotic agents। hope it's clear। अभी डिस्कस करते हैं abiotic agents में नंबर 1, abiotic agents में नंबर 1 एनिमोफिली। व्हाट इज एनिमोफिली? एनिमोस का मतलब अभी तो बोला मैंने, विंड पोलिनेशन, विंड पोलिनेशन। फिलीन का मतलब टू लव विंड, विंड को प्यार करते हैं, मतलब विंड से पोलिनेशन कर रहा है। पोलिनेशन बाय विंड आर मोर कॉमन अमंग्स द अबायोटिक पोलिनेटर्स। मतलब पानी से हाइड्रोफिली से भी ज्यादा एनिमोफिली कॉमन है प्लांट किंगडम में। दैट्स इट। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to the stigma occurs with the help of wind। एग्जाम्पल्स, कोकोनट पाम, डेट पाम, ग्रासेस। डेट्स हो जो होता है ना, डेट्स, खजूर ना, वो, देन कोकोनट, ग्रासेस, ये सब में क्या होता है? विंड पोलिनेशन होता है। मोनोकोट्स है ना वो, मोनोकोट प्लांट। आप देख सकते हैं pollen grains are transferred by wind currents। तो यहां से विंड ब्लो करके दूसरे प्लांट में गिरेगा। फाइन। व्हाट अबाउट द adaptations of such flowers? adaptations पूछता है, you have to study 8 features। 8 features भी एग्जाम में नहीं लिखना है, it's your wish, मार्क्स के अनुसार लिखना है। मिनिमम 4 फीचर्स तो पढ़ के ही जाना है। क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं? कैरेक्टर्स ऑफ द फ्लावर्स
if they are getting pollinated by wind. So wind pollinated flowers की character number 1. Who is going to read? Sakshi. Yeah, Sakshi. Characters of wind pollinated flowers. Number 1, inconspicuous flowers. Yeah, small and inconspicuous flowers. छोटा है मतलब देखो, अगर इंसेक्ट पोलिनेशन है तो फ्लावर तो बड़ा ही होना चाहिए. यहाँ पे विंड पोलिनेट कर रहा है, विंड को आंख है क्या, बड़ा फ्लावर है छोटा फ्लावर दिखने के लिए आंख तो नहीं है, तो इसलिए नो नीड ऑफ लार्ज फ्लावर्स हियर, स्मॉल फ्लावर्स रहता है. या इनकॉन्स्पिकस का मतलब देख नहीं सकते, इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू सी, स्मॉल फ्लावर्स. देन सेकंड पॉइंट, हाँ इसका मीनिंग सब समझा होगा ना. कलरलेस, ऑर्डरलेस का मतलब ऑर्डर में अरेंज नहीं है, नहीं. ऑर्डरलेस का मतलब स्मेल नहीं है, ओडीओ यू आर. नेक्टरलेस मतलब नेक्टर नहीं रहता है. देन न्यू, स्मॉल स्मॉल फ्लावर्स है तो दे आर पैक्ड इनटू एन इनफ्लोरेसेंस. यहाँ पे देखा, दिस इज एन इनफ्लोरेसेंस. पुष्प मंजरी मतलब ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन ए फ्लोरल स्टॉक इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस. पढ़ा है ना रेसिमोस एंड साइमोस लास्ट ईयर में. दैट्स इट. देन क्यों लाइट वेट होना चाहिए ना उठने के लिए, विंड तो लेके जाना चाहिए. सो इट शुड बी लाइट एंड ड्राई पॉलन. वेट है तो भी उड़ना मुश्किल है. या डस्टी एंड नॉन स्टिकी मतलब डस्ट की तरह लाइट वेट एंड इजी टू फ्लाई होना चाहिए. एंड नॉन स्टिकी, नॉन स्टिकी का मतलब इधर उधर जाके अटक नहीं होना चाहिए. इट शुड लैंड ऑन द स्टिग्मा ओनली, राइट. तो जाते टाइम में अलग अलग पेड़ में, अलग अलग गाड़ियों में ना, जो भी ऑब्स्टेकल्स बीच में है विंड का, वहां वहां पे जाके अडहियर होने का चांसेस है. ऐसे नहीं होना चाहिए. इट शुड बी नॉन स्टिकी सो दैट इट डजंट अडहियर टू एनी सरफेस. ओके, सो हमेशा ऐसे घूमते फिरते परी जैसा घूम सकते हैं, ठीक है. देन यहाँ पे वेल एक्सपोज्ड स्टेमन सो दैट, ये देख अच्छे से एक्सपोज किया है स्टेमन. दिस इज अ कॉर्न कोब. कॉर्न, दिस इज द टसल्स ऑफ कॉर्न कोब. कॉर्न 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 चोर कॉर्न क्या है, मेस. तो उसकी फ्लावर्स की स्टेमन ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे फेदरी है. यहाँ पे दिख रहा है ना एक्सपोज करके, ये वाला देखो ना. दिस इज द स्टेमन. यू कैन सी वेल एक्सपोज्ड स्टेमन. सो एक्सपोज करके पकड़ा है तो विंड आया तो उसको फ्लो कर, ऐसे ब्लो कर सकते हैं. या feathery stigma to easily trap the airborne pollen grains. So stigma should be able to catch that flying pollen grains. So stigma ऐसे feathery से इस तरफ भी और उस तरफ भी ऐसे feather है ना, feather की तरफ तरह अरेंज करते हैं. Now यूनिओवुलेटेड पिस्टल मतलब वन ओव्यूल रहता है एक पिस्टल में, एक ओवरी में एक ही ओव्यूल. मतलब मैंगो की तरह, एक मैंगो के अंदर कितना सीड है, एक ही सीड होगा ना. इसी तरह यूनिलोक्युलर रहेगा, यूनिओवुलेटेड रहेगा. नाउ विंड पोलिनेशन हो गया. नेक्स्ट अबायोटिक एजेंट इज वाटर. वाटर से द्वारा जो पोलिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड बोलना हाइड्रोफिली. हाइड्रोफिली. सो हाइड्रोफिली इज वाटर पोलिनेशन. यहाँ पे देखो, पोलिनेशन इन सी ग्रासेस एंड वर्लिस्नेरिया एंड वाटर प्लांट्स में, एक्वाटिक प्लांट्स में ऐसे होता है. बट डोंट थिंक ऑल वाटर प्लांट्स विल डू वाटर पोलिनेशन. एक साल एग्जाम में क्या पूछा पता है? वाटर हायासिंथ का मोड ऑफ पोलिनेशन पूछा. सब लोग क्या लिखोगे? वाटर. वाटर हाइसिंथ है ना, नाम में वाटर है. वाटर हाइसिंथ इज ए प्लांट, वाटर में ही ग्रो होता है वो. बट एक्चुअली ना उसका विंड पोलिनेशन है. विंड भी हो सकता है, इंसेक्ट भी हो सकता है. बिकॉज उसकी ना फ्लावर्स तो एयर में है, पानी में है तो भी वो फ्लावर्स ऐसे सरफेस में ओपन होता है. समझा? अगर फ्लावर्स भी सबमर्ज्ड है, पानी के अंदर है, तो फिर पॉसिबल नहीं है विंड एंड इंसेक्ट पोलिनेशन. देन ओनली इन सच केसेस ओनली दिस हाइड्रोफिली हैपेंस. तो देखते हैं. सी pollination in Vallisneria, the female flower reaches the male flowers, reaches the surface of the water by the long stalk. देखो फीमेल फ्लावर्स को बहुत लंबा स्टॉक रहता है. आर यू एबल टू सी दिस फीमेल फ्लावर्स ओवर हियर? दिख रहा है?
Then male flowers or pollen grains are released into the water. देखो male flowers तो submerged है, so they can't be collected by wind, they can't be collected by insect. The only way to reach the female flowers is by swimming in the water. तो water currents में वो flow होके surface में आके फिर उसके stigma में चले जाते हैं. So Wallisneria is the best example for water pollination. So Wallisneria में long stalk रहता है female flowers, वो ऐसे ऊपर flower बनता है. Now they are carried passively by water currents. Who? Male pollen grains. मेल का जो pollen grains नीचे water में release होता है ना, that is carried to the female flower by water currents. Sea grasses देखते हैं. In another group of water pollinated plants such as sea grasses, female flowers remain submerged in the water. Are you able to see the female flowers inside the water? Yeah. So pollen grains are released inside the water. So दोनों male भी पानी के अंदर है, female flowers भी पानी के अंदर है. So what happens? पानी के अंदर ही उसका ट्रांसफर हो रहा है. That is hydrophily. So इसके adaptations mention करने के लिए पढ़ना है. 2-3 points you can write. Number 1, long ribbon like style होता है. मतलब female flowers को surface तक ऐसे आने के लिए it need long floral stalk, right? It need long floral stalks. So flowers will have a what? They will have a long stalk. That is one example. Or you can say ribbon like लंबी stigma हो सकता है उसका. Stigma is long like ribbon. Okay. Long pollen grain. Ribbon like long pollen grains. Ribbon like long pollen grains. Stigma नहीं, pollen grains. So pollen grains भी लंबा होता है. Female flower की stalk भी लंबा होता है. Now पानी में है, pollen grains wet नहीं होना चाहिए, waterproof covering उसके ऊपर होना चाहिए, mucilaginous covering बोलते हैं, waterproof covering रहता है pollen grains को. So pollen grains long होता है, ribbon like attachments रहता है उसमें, wet नहीं होने के लिए उसके पास क्या रहता है, mucilaginous covering भी रहता है. These are the few adaptations of water pollinated flowers. Wind pollinated flowers का 8 adaptation, water pollinated flowers का 3 adaptation. Long stalk for the female flower, long and ribbon like pollen grain, mucilaginous coated, unwettable pollen grains. Okay. So it is only happening in some very rare in flowering plants. Hydrophily तो बहुत rare है, only limited to 30 genus. Genus की plants ही करते हैं वो, याद रख. अभी आ गया हमारा इंसेक्ट पॉलिनेशन, बायोटिक फैक्टर है. सो who are these biotic agents? A list of biotic agents you can see. Jian, just say the name of the animals who aids in pollination. These butterflies, beetles, flies, ants, moths, birds, and rats are the contributors. Larger animals such as squirrels, rodents, lizards, decorators have bee pollination. बी बटरफ्लाई, बीटल फ्लाई, वास्प एंड मोथ बर्ड है, सब हमको पता है. बट द लिजार्ड वाला चीज भी याद रखो. रोडेंट्स, लिजार्ड, लमर, रोडेंट्स पता है ना, रैट की कैटेगरी. So they also aids in pollination. Now, entomophily, that is the insect pollination, right? So insect pollination में butterfly, moth, wasp, beetle, all of them are insect. Okay, insect का मतलब क्या बोलते हैं मराठी में, हिंदी में षटपद बोलते हैं क्या? 6 legs रहता है insect को, 6 legs रहता है and 4 wings रहता है. एंड भी इंसेक्ट होता है. सो मोथ, बटरफ्लाई, वास्प, बीस, बीटल एंड ये सब की वजह से जो पॉलिनेशन होता है दैट इज एंटोमोफिली. सो प्लांट्स इंसेक्ट को कैसे अट्रैक्ट करते हैं? Flowers will provide nectar, right? Flowers can provide nectar, they will provide fragrance,
एंड इन द लास्ट चैप्टर यू विल गेट टू नो दैट इवन अंडा डालने के लिए जगह तक देता है कुछ कुछ फ्लावर्स। क्या क्या करते हैं एक पोलिनेशन के लिए पता है? देर आर सम, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ अंजीर, फिग। फिग में एक मोथ आके पोलिनेट करते हैं, सॉरी वास्प आके पोलिनेट करते हैं, वास्प वास्प। सो वास्प को कैसे अट्रैक्ट करते हैं पता है? ये इसकी फ्लावर्स के अंदर जगह है, वो जगह पे वास्प अंडा डालने को कोशिश करते हैं। So female will come when it is time to lay the eggs. Female wasp will come and visit the flower. Of course, वो egg उसके अंदर चले जाएंगे। So when it comes to the flower ना, इसकी इधर उधर मतलब बॉडी में adhere होता है pollen grains. When it visit the next flower, automatically pollination हो जाएगा। Okay, जानबूझ के नहीं कर रहे ये ट्रांसफर ऑफ pollen grains, बाई चांस में हो रहा है। एक जगह पे आके बैठा तो वहां पे pollen grains से इंसेक्ट के ऊपर डस्ट होगा। When it visit the next flower, what happens? Pollination हो जाएगा। Okay, and pollination के बाद ये फ्लावर फ्रूट बन जाएगा ना, तो अंडा भी फ्रूट के अंदर होगा ना, समझा? So this young ones will be hatching into fruit itself. क्या क्या चाहिए उसको? लग्जूरियस लाइफ, नो नीड टू गो आउट फॉर फूड, एक फ्रूट के अंदर ही पैदा हो गया। तो अंजीर के अंदर वास्प की लार्वा रहता है, नॉट इन एवरी फिग, सम फिग्स में रहता है। ओके, हाँ, ऐसे और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ऑर्किड। ऑर्किड एक मेडिटेरेनियन ऑर्किड है, ऑफ्रेस। उसकी एक पेटल ना एक फीमेल हनीबी की तरह दिखता है। सो दैट मेल हनीबी क्या सोचता है? ओ दिस इज माय मेट, ये सोच के वो फ्लावर को विजिट करते हैं एंड ट्राई टू मेट विद दैट नकली फ्लावर, बट दैट इज कॉल्ड फेक मेटिंग। सो इट्स अ स्यूडो पॉपुलेशन बोलता है। एंड देन व्हाट हैपेंस? बेवकूफ नहीं समझेगा कि वो क्या है, इट्स नॉट अ रियल फीमेल हनीबी। वो क्या करते हैं? दूसरा फ्लावर को देख के, हाँ ये रहेगा मेरा फीमेल हनीबी, ऐसे सोच के उसको भी पोलिनेशन करने का सोचता है। तो ऐसे हो सकता है पोलिनेशन। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ट्रैप फॉर ways to attract insect for pollination. You can see, ये फिगर आएगा ना पहले, सी flower number 1. When an insect lands on a flower, it comes in contact with the anther and stigma of the flower. मधुमक्खी की बॉडी में अभी क्या हो गया है? pollen grains गिरा है। And you know, honeybees can collect nectar also. They have pollen basket in their legs. उसके legs में एक basket रहता है, सच में उसको pollen basket बोलते हैं। तो collect करके किधर लेके जाते हैं? उसकी honeycomb में लेके जाते हैं। So फ्लावर 1 हो गया, नेक्टर सब कलेक्ट किया हनी बनाने के लिए, नेक्टर सब मुंह में है, अभी पॉलन ग्रेन बॉडी में भी है, बास्केट में भी है, शॉपिंग के लिए गया है। अभी देखो pollen grains. Now what happens is in flower 2 it is going to visit. When it lands on another flower, the pollen comes in contact with the stigma of that flower. बाइसेक्सुअल फ्लावर रहेगा ना, दूसरा फ्लावर में गया तो उसका स्टिग्मा में बाई चांस वो डाला, तो ऐसे हो जाएगा क्या? पॉलिनेशन। एंड ये बार बार ये करने के लिए कुछ ना कुछ कीमत देना पड़ेगा, एंड दैट रिवार्ड इज द नेक्टर एंड द शेल्टर। कभी शेल्टर भी दे सकते हैं, और a place to lay eggs, that also I told. Characteristics of endomophilous flowers, ये तो छोटे छोटे बच्चों को पूछा तो भी they will answer, right? What are the characteristics of an insect pollinated flower? You just say. Number 1, showy flowers and brightly colored, एकदम well exposed फ्लावर्स रहेगा, हाँ सनफ्लावर जैसा ऑफ कोर्स। स्मॉल फ्लावर्स है तो इसको दिखना मुश्किल है ना, आके बैठना भी मुश्किल रहेगा। सो वो क्या करते हैं? थोड़ा बड़ा दिखने के लिए, देखो देखो मैं इधर हूँ, मुझे दिख रहा है, तो दिख नहीं रहा है, तो वील फॉर्म ए बंच ऑफ फ्लावर्स सो दैट यू कैन सी अस। तो ऐसा कंडीशन है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस विंड में भी देखा था ना। सो दीस फ्लावर्स, even endomophilous flowers can also do inflorescence. So inflorescence is sunflower. You know, sunflower is not a single flower. उसमें हजार फ्लावर्स रहता है, each and every petal is a flower, समझा? एंड उसके सेंटर में भी फ्लावर्स है, डिस्क फ्लोरेट्स, समझा?
presence of landing platform or honey or nectar guides. हनी रहता है और नेक्टर गाइड्स रहता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म रहता है, मतलब फ्लावर्स फ्लावर्स विल हैव ए जैसे एयरपोर्ट की तरह फ्लाइट को लैंड करने के लिए जो जगह होता है, इसी तरह आके आराम से आके लैंड, स्मूथ लैंडिंग के लिए भी जगह रहता है वो फ्लावर्स में. देन दैट फ्लावर्स विल प्रोड्यूस ऑर्डर. स्मेल देखिए, स्मेल फील करके आना चाहिए ना. ओके, कभी कभी ना फाउल स्मेल भी होता है. हर फ्लावर्स खुशबू नहीं बनाते, कभी बदबू से भी अट्रैक्ट होता है. फ्लाइज, you know that different insects are having different fantasies. कुछ इंसेक्ट्स को क्या पसंद है, अच्छा प्लेजेंट स्मेल पसंद है, कुछ इंसेक्ट्स को बदबू पसंद है, जैसे फ्लाइज होता है, तो उसको भी अट्रैक्ट करने पड़ेगा ना, तो उसके लिए फाउल स्मेल भी कुछ कुछ फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं. यू नो चेना, दैट मीन्स एलिफेंट फुट याम, बहुत गंदा स्मेल है उसका, फ्लावर्स का. That flowers are actually producing this foul smell to attract these insects. Then provide nectar and edible pollens to the agents. Insect pollinated flowers will provide edible pollen grains. खाने के लिए थोड़ा खा के भी चलो पेट भर के, दूसरे फ्लावर में भी जाना है, तो इसलिए. Then closely placed stamens and the nectar glands so that when pollinators come to drink the nectar, the pollen stick to their body. ये फ्लावर्स की नेक्टर ग्लैंड दिख रहा है. This flower is called magnolia. एंड ये मैग्नोलिया की नेक्टर ग्लैंड्स यहाँ पे हैं, येलो कलर में दिख रहा है. तो वहां पे जब फीडिंग के लिए आएगा, उसका क्लोजली पैक्ड है उसका आंदस. आंदस इज वेरी क्लोज टू दैट नेक्टर ग्लैंड. तो नेक्टर पीने के लिए बैठेगा, वहां पे उसके पास में ही है कौन, आंदस also. So easily they will be getting transferred to the body of the insect. So closely placed stamens and the nectar gland. These are the different adaptations of insect pollinated flowers. और भी है देखो, sticky stigma to adhere the pollen grain. pollen grain जल्दी adhere होने के लिए क्या होता है, sticky stigma रहता है. Cushion like stigma that you can write. Stigma will be cushion like as in hibiscus for that dusting, sticky. Spiny or heavy pollen surrounded by pollen kit. You know, pollen grains कोरोना वायरस की तरह इतना रफ क्यों है, बिकॉज ऐसे कांटा जैसा स्पाइक्स है तो जल्दी एडहियर होगा अटैचमेंट सरफेस बनाने के लिए. स्मूथ है तो क्या होता है, विंड की तरफ, विंड ब्लो किया तो एडहियर नहीं होता है ना, स्मूथ सरफेस है तो ये रफ सरफेस में आएगा इसका पोलन ग्रेन्स, बिकॉज इट हैज टू बी एडहियर्ड. नाउ इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवार्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ स्पेसेस टू ले एग्स. एक एग्जाम्पल मैंने बोला फिग है, यहाँ पे अमोर्फोफालस भी बोला है. अमोर्फोफालस में यू कैन सी इतना बड़ा फ्लावर है, फ्लावर के अंदर इट्स लाइक क्या ये इंसेक्ट्स की नजर से देखा तो इट्स लाइक ए बंगलो, उसके अंदर बहुत से ज्यादा जगह है, उसके अंदर जाके अंडा डालते हैं ये फ्लावर के अंदर, समझा. अमोर्फोफालस, इट इज द टॉलेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड. लार्जेस्ट फ्लावर रफ्लेशिया है, एलिफेंट पॉलिनेशन करते हैं. टॉलेस्ट फ्लावर 6 फीट रहता है. 6 फीट मीन्स मेरा हाइट का रहेगा वो, उतना बड़ा फ्लावर है. नाउ the moth deposits its eggs in the locule of the ovary and the flower in turn gets pollinated by the moth. अमोर्फोफालस भी मोथ वहां पे जाके क्या करते हैं, अंडा डालते हैं. फिग में कौन, वास्प. अमोर्फोफालस में कौन, मोथ. अलग अलग है, मोथ नहीं पता है, पता है, अच्छा ओके. नाउ टेक्स्ट बुक में नहीं है बट स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स has this, सीबीएसई में नहीं है. ऑर्निथोफिली एंड द कायरोप्टेरोफिली, लेट्स सी. सीबीएसई में नहीं है. सो ऑर्निथोफिली, ऑर्निस का मतलब बर्ड, बर्ड पॉलिनेशन होता है. यू ओनली रीड पूर्वा स्पेशलाइज्ड. हाँ, सनबर्ड्स लाइक हमिंग बर्ड्स. हमिंग बर्ड्स रहता है ना, उसका
सिर्फ डी कर्व्ड बीक रहता है, ऐसे स्ट्रो की तरह ये फ्लावर के अंदर डाल के उसका नेक्टर पीने का, वो ट्यूब लाइक, हाँ फ्लावर भी ट्यूब लाइक होना चाहिए उसका। बर्ड, सारा बर्ड्स तो ये नहीं कर सकते ना, कुछ कुछ बर्ड्स की चोंच तो ऐसे सोचो, तोता की चोंच, क्रो की चोंच, उसकी बीक ऐसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो एकदम स्ट्रेट है, सो इट कांट ड्रिंक द नेक्टर। सो नेक्टर ड्रिंकिंग बर्ड्स की बीक थोड़ा डी कर्व्ड बीक रहता है, सुई जैसा, वैसा है तो देन दैट्स इट। देन वेरी फ्यू ornithophilous plants are there, bombax lobelia जैसे बहुत कम प्लांट्स है जो ये करते हैं। क्रॉस बुलबुल पैरट, क्रॉस बुलबुल पैरट्स कैन ऑल्सो डू दिस वन पोलिनेशन, बट उसका फ्लावर ट्यूबुलर नहीं रहेगा, उसका चोंच डालने के लिए जितना उसका चोंच कौन सा शेप में है उसी शेप में आएगा द फ्लावर ऑल्सो। ओके, सो फ्लावर शुड बी मैचिंग विद द शेप ऑफ द बीक, दैट्स इट। सो सारा बर्ड्स पोलिनेशन नहीं करते हैं, ओनली फ्यू सेलेक्टेड बर्ड्स कैन डू दैट, उसका एग्जाम्पल मैंने दिया है। फ्लावर्स भी बहुत कम ही है इस कैटेगरी में, विच आर द फ्लावर्स, बॉम्बाक्स लोबेलिया, सनबर्ड, हमिंग बर्ड, बॉम्बैक्स लोबेलिया सब देख रहा है। Characteristics of ornithophilous flowers. Flowers secrete abundant watery nectar. Flowers secrete abundant watery nectar or have edible parts as rewards for the pollinators. क्या रहता है? वाटरी नेक्टर रहता है, नेक्टर तो होना ही चाहिए ना, नहीं तो बर्ड्स कैसे आएगा, दैट्स इट। देन फ्लावर्स में एडिबल पार्ट्स होना चाहिए, ये इंसेक्ट है तो उसको तो पीने के लिए कुछ दिया तो वो खुश होता है, अभी तो बर्ड्स है, बर्ड्स को बस पीने के लिए थोड़ा नेक्टर दिया तो वो सेटिस्फाई नहीं होता, उसको खाने के लिए भी कुछ चाहिए, तो प्लांट के कुछ एडिबल पार्ट्स होना चाहिए वहां पे। सो दिस एडिबल पार्ट्स कैन बी फ्रूट्स एक्चुअली। नाउ तो खाने के लिए भी पीने के लिए भी देना पड़ेगा इफ इट इज ornithophyll, that's it. Now the floral parts are commonly leathery and brightly colored. बर्ड्स को दिखना है ना, बर्ड्स को अच्छे से देखने के लिए इट शुड बी, देखो कितने ऊपर से उड़ रहा है तो वहां से ये फ्लावर दिखने के लिए थोड़ा ब्राइट कलर, थोड़ा फेदरी होना चाहिए। देन दे हैव फनल शेप्ड ट्यूबुलर कोरोलास, उसको क्या होना चाहिए? ट्यूबुलर कोरोला होना चाहिए, ट्यूबुलर फ्लावर्स उसके अंदर चोंच करके पीने के लिए। काइरोप्टेरोफिली, केयर हैंड, टेरोस विंग, फिलीन लव। एक्चुअली काइरोप्टेरा का मतलब है द ऑर्डर ऑफ बैट, बैट से पोलिनेशन होता है। सो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस पोलन ट्रांसफर होता है, दूर दूर से। एक प्लांट कामोठे में है तो दूसरे प्लांट पनवेल में है, जैसे लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर कर सकते हैं पोलन ग्रेन्स काइरो विद द हेल्प ऑफ बैट्स, याद रखो। ये देख काइरोप्टेरोफिलस, काइरोप्टेरोफिलस फ्लावर्स का नेम्स अगेव, आंदोसेफालस, एडेंसोनिया। ये अच्छा दिख रहा है ना, आंदोसेफालस, इट्स नाइस। कलर डल है, लार्ज एंड स्टाउट रहता है, स्ट्रॉन्ग फर्मेंटिंग फ्रूटी स्मेल रहता है, ये बात को ना फ्रूट पसंद है, पर फ्रूटी स्मेल भी होना चाहिए फ्लावर्स में। देन अबंडेंट पोलन एंड नेक्टर होना चाहिए, बहुत सारा पोलन एंड नेक्टर होता है उसमें, दिखा। ओके, नाउ वन बाय वन डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। दुनिया में हर चीज को अच्छा भी रहता है, बुरा भी रहता है, तो सेल्फ पोलिनेशन का अच्छा बुरा करके हम बोला कि सेल्फ पोलिनेशन वो है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, हम क्रॉस ब्रीडिंग करना है। अभी आपके क्रॉस ब्रीडिंग का डिसएडवांटेजेस पढ़ना है। ओके, तो अभी मत पूछो कि क्रॉस ब्रीडिंग भी नहीं करना है क्या, तो फिर क्या होगा, फिर प्रोडक्शन ही नहीं रहेगा। So let's discuss the advantages and the disadvantages of cross pollination. Jian, help me. Pollination includes genetic replication and fertilization in the colony. Certain plants हाँ, wait. Recombination क्या पता है? टू पेरेंट्स की कैरेक्टर शफल हो सकता है, उसके लिए क्रॉस पोलिनेशन होना चाहिए। यस, मिक्सिंग अप ऑफ कैरेक्टर्स। नाउ certain plants produce hives only when coordinated with the biodiversity or active traits. It increases the adaptability
ये देखो, प्लांट्स खुद चाहते हैं कि कुछ इंसेक्ट्स मुझे पोलिनेट करो ऐसे। अगर विंड पोलिनेशन वाटर पोलिनेशन हो रहा है तो दे आर नॉट दैट मच हैप्पी, तो दे विल नॉट प्रोड्यूस हायर यील्ड। ज्यादा यील्ड कब होता है? ओनली इन insect pollination. So plants itself show some favorism to the insects. Okay. Then it increases the adaptability and thus the organisms are favored in the struggle for existence. Yes. क्रॉस पॉलिनेशन है, अडेप्टेबिलिटी होगा, मुसीबत में भी उसको सर्वाइव कर सकते हैं। दैट मीन्स दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन एनी एनवायरमेंटल कंडीशन, सर्वाइव कर सकते हैं। सो इट इंक्रीजेस देयर सर्वाइवल रेट अंडर एडवर्स कंडीशन। सेल्फ पॉलिनेशन में मैं बोला ना, वैरायटी नहीं आ रहा है, मतलब कुछ एनवायरमेंटल चेंज हो गया तो वो एक्सटिंक्ट होता है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर सो स्ट्रॉन्ग इन लाइफ दैट कोई भी मुसीबत परिस्थितियां उसके सराउंडिंग में आया तो भी वो क्या करते हैं? They will survive. Then Leads to the production of disease resistant. mm, It produces new and useful varieties. Effective characters are estimated of disease resistance होता है, better characters होता है, varieties आते हैं। These are the advantages. Moving to the disadvantages. Factor of chance. ये इट्स अ मैटर ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट? कि कैसे पता चल जाएगा कि आज एक इंसेक्ट आएगा, आज ही पोलन ग्रेन्स रिलीज होगा? यू नो द पोलन ग्रेन्स का वाइबिलिटी उतनी दिन तक नहीं रहता है। सो सेम डे में एक इंसेक्ट उसने विजिट करना है, फिर वही सेम डे में वही इंसेक्ट दूसरा फ्लावर में भी जाके बैठना है। अगर इसमें एक टाइम फ्यू आवर्स या फ्यू मिनट्स का डिले, फॉर एग्जाम्पल एक हनी भी ऐसे सोचे, देखो मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, अभी मुझे आधा घंटा रस चाहिए बोल के ऐसे एक जगह पे बैठा, तो that pollen grains on the surface of the honeybee will go unviable, मर जाएगा ना। तो तुरंत एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाना पड़ेगा। That's it. So it's a matter of chance. Then highly wasteful production of large number of pollens. इंसेक्ट पॉलिनेशन में है ना, पोलन ग्रेन ज्यादा बनाना पड़ेगा, सो दैट क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए ज्यादा नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स चाहिए। सो इतना एनर्जी क्यों वेस्ट करना है? दैट्स इट, वेस्टफुल प्रोसेस है। देन बर्ड कैरेक्टर्स माइट बी इंट्रोड्यूस्ड। कभी कभी ना, एक एग्जाम्पल में बोलता हूँ, एक डिसीज्ड प्लांट में बैठा हुआ हनी भी एक हेल्थी प्लांट में आके बैठा, सो डिसीज्ड प्लांट की पोलन ग्रेन लेके आया ना, हालत खराब हो गया ना हेल्दी प्लांट का भी। सो हनी बी को नहीं पता है ना कौन सा प्लांट एकदम क्या परफेक्ट है, हेल्दी है? हनी बी को कुछ डिसीज प्लांट, मतलब प्लांट को ये डिसीज, हनी बी को वो डिसीज नहीं होता है। प्लांट को जो डिसीज होता है वो हनी बी को नहीं होता है नेहा, सो हनी बी इज सेफ। प्लांट को जो, फॉर एग्जाम्पल HIV प्लांट्स को होगा क्या? नहीं। तो इसी तरह प्लांट्स का जो डिसीज होता है वो हमको भी नहीं होगा, हमारा जो डिसीज है वो प्लांट्स को भी नहीं होगा। अंडरस्टूड? गुड कैरेक्टर्स माइट बी लॉस्ट। कभी कभी है ना, ये पोलन ग्रेन्स गुड कैरेक्टर्स कब रिटेन होता है? इफ द पेरेंट्स आर हाई सुपीरियर क्वालिटी का है। अगर एक पेरेंट सुपीरियर क्वालिटी है, दूसरा पेरेंट डज नॉट दैट मच सुपीरियर, इन्फीरियर है, तो देन पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर किया तो इट लॉस्ट इट्स गुड कैरेक्टर। बोलते हैं ना, एक अच्छा एप्पल की बास्केट में एक सड़ा हुआ एप्पल रखा तो वो सड़ा हुआ एप्पल अच्छा नहीं होता है, बाद में अच्छा हुआ एप्पल सड़ जाए ना। दैट्स इट। हाँ, 2-3 minutes रिलैक्स करो, क्योंकि दिस टॉपिक इज सो इम्पोर्टेंट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। विल कंटिन्यू।
कंटिन्यू करें 10 मिनट में एक टॉपिक खत्म होगा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आफ्टर दिस वी विल बी फिनिशिंग सो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की लास्ट टॉपिक है आउटब्रीडिंग डिवाइस नेक्स्ट क्लास में क्या रहेगा फर्टिलाइजेशन रहेगा सो लिसन केयरफुली प्लांट्स को self pollination continued self pollination will reduce the fertility of the plant इसको क्या नाम दिया हमने इनब्रीडिंग डिप्रेशन दिया है सो जो प्लांट हेर्माफ्रोडाइट है हेर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स पार्ट्स आर इन द सेम फ्लावर इटसेल्फ तो उसमें कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन होके 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 लास्ट में उसको क्या नहीं हो सकता है फर्टिलिटी हमेशा के लिए लॉस हो सकता है तो ये प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ेगा सो प्लांट्स को अपने आप ये पता है कि अगर मैं सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा हूं तो फ्यूचर में मेरे लिए अच्छा नहीं है ओके सो आई शुडंट प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन ओके सो दे आल्सो हैव दिस कैपेबिलिटी टू कंट्रोल देयर सेल्फ पॉलिनेशन ताकि थोड़ा क्रॉस पॉलिनेशन होके अच्छा हो जाएगा उसका फ्यूचर तो फॉर ए ब्राइट फ्यूचर प्लांट्स विल सेलेक्ट क्रॉस पॉलिनेशन तो उसकी डिफरेंट मैकेनिज्म्स रहता है सो द मैकेनिज्म्स यूज्ड बाय द प्लांट्स टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन एंड टू demote what self pollination are called the outbreeding devices outbreeding devices किसकी चांसेस इंक्रीज करने के लिए है क्रॉस पॉलिनेशन की चांसेस इंक्रीज करने के लिए और सेल्फ पॉलिनेशन की चांसेस कम करने के लिए फर्स्ट वन ये लिखना है सब लिखना है एक्चुअली सो वन बाय वन टर्म पढ़ना फर्स्ट टर्म इज यूनिसेक्सुअलिटी सो प्लांट्स अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही बन रहा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब फ्लावर जिसमें इधर मेल रहेगा नहीं तो फ्लावर फीमेल रहेगा तो यूनिसेक्सुअल है तो देन सेल्फ पॉलिनेशन की चांस नहीं रहेगा ना अंडरस्टूड यूनिसेक्सुअलिटी में ओनली मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स ही बना रहा है तो अपने आप कैसे पॉलिनेट कर पाएगा नहीं कुछ मतलब ऑटोगमी नहीं होगा बट यू नो एक प्लान को इमेजिन करो यहाँ पे ऑल ऑफ यू लुक हियर लिखने का टाइम दूंगा मैं एक प्लान को इमेजिन करो एक साइड में मेल फ्लावर वही सेम प्लांट में दूसरे साइड में फीमेल फ्लावर तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है बट इट्स नॉट ऑटोगमी इट इज भूल गया जीटनोगमी जीटनोगमी हो सकता है दैट्स द टाइप ऑफ सेल्फ जीटनोगमी इज टेक्निकली सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज इट इज हैपनिंग इन द सेम प्लांट इटसेल्फ राइट हाँ तो वो प्रिवेंट नहीं कर सकते हाँ तो वो भी प्रिवेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा एक प्लांट पूरा मेल फ्लावर्स एक प्लांट पूरा फीमेल फ्लावर्स ऐसे बनाना पड़ेगा एक्चुअली दोनों कंडीशंस रहता है कुछ कुछ प्लांट्स में मतलब इफ ए प्लांट has both male flowers and female flowers but only unisexual male unisexual female ऐसे if a plant is having male flowers on one side and in the same plant itself female flowers are on the other side then that plant is called a monoecious plant यूनिसेक्सुअलिटी में मोनेशियस प्लांट का मतलब क्या है एक ही प्लांट में मेल फ्लावर्स भी है फीमेल फ्लावर्स भी है उसको ऑटोगमी नहीं कर सकते बट जीटनोगमी कर सकते हैं ओके क्लियर ये पूछता है देन सम प्लांट्स को entirely that plant will be having male flowers entirely the another plant will be having female flowers जैसे पपाया होता है पपाया की entire plant में कभी कभी मेल फ्लावर्स ही होता है some papaya will have only female flowers तो अगर कुछ पपाया में फ्रूट नहीं आ रहा है मतलब दैट इज मेल फ्लावर्स है उसमें पूरा समझा सो पपाया भी वैसा है नटमेग है ना नटमेग जादी क्या हाँ नटमेग में भी वही होता है सो उसको डायेशियस बोलता है सो डायेशियस प्लांट्स में मेल एंड फीमेल फ्लावर्स विल बी एंटायरली ए प्लांट मेल या फीमेल रहेगा डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में रहेगा if male flowers and female flowers are in the same plant itself then that is monoecious monoecious का example मेज कैस्टर क्यूकम्बर जैसा मेल मेज कैस्टर कैस्टर पता है ना कैस्टर कैस्टर ऑयल बताएं आवणक कैस्टर रोड में दिखता है ना मैं एक दिन में लेके आता हूँ कैस्टर ठीक है हाँ नाउ कमिंग टू सेकंड डिवाइस फर्स्ट डिवाइस क्या था प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल इसको वन समझो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स यूनिसेक्सुअलिटी सेकंड डाइकोगमी
डाइकोगमी का मतलब है pollen release does not occur at the time when the stigma receptivity is happening. For example, फ्लावर्स बाइसेक्सुअली है, मतलब मेल भी है फीमेल भी है, तो फिर फ्लावर्स विल डिसाइड, अच्छा हमें पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन करना अच्छा नहीं है, वी हैव टू प्रमोट क्रॉस पोलिनेशन, सो स्टिग्मा विल नहीं, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विल से टू मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, अच्छा तुम जब मैच्योर होगा तो मैं इमैच्योर रहूंगा, तो we will not be meeting together, right? So when stigma is matured, pollen grains are not released. When stigma is receptive, pollen grains are not released. मतलब उसके बीच में एक सिंक रहता है, टाइम लैग रहता है, समझा? So they will decide at time. And stigma अगर पहले मेच्योर हो रहा है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज maturing at first, and the male reproductive part is immature at that time, तो उसको प्रोटोगाइनी बोलता है. पिस्टल मैच्योर्स बिफोर द आंदर. उल्टा है, आंदर पहले मैच्योर किया तब स्टिग्मा इमेच्योर है, तो फिर क्या होगा? प्रोटैंड्री. एंड्रो मतलब क्या है? मेल. तो मेल पहले मैच्योर हो रहा है तो प्रोटैंड्री. गाइनो मतलब क्या है? फीमेल. फीमेल पहले, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर होता है तो प्रोटोगाइनी. सो डाइकोगमी कैन बी प्रोटैंड्री और प्रोटोगाइनी. समझा? कौन सा फ्लावर में होता है वो भी पढ़ना है. प्रोटैंड्री happens in salvia and the sunflower. Then protogyny happens in Mirabilis jalapa and the gloriosa. Mirabilis jalapa is the 10 o'clock flower. 4 o'clock. 4 o'clock flower, sorry. 4 o'clock flower. Okay. Mirabilis jalapa and the gloriosa are examples of protogyny. Then डाइकोगमी हो गया. हेट्रोस्टाइली, दैट इज द थर्ड डिवाइस. हेट्रोस्टाइली में क्या होता है? बोथ आंदर एंड स्टिग्मा आर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशन. अच्छा देखो, सामने सामने है तो क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होने का चांसेस है. सो द फ्लावर में, इनसाइड द फ्लावर, आंदर विल बी इन वन पोजिशन एंड स्टिग्मा विल बी इन अनदर साइड. ऐसे, सो दे आर नॉट गोइंग टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. नहीं तो ऐसे सोचो, स्टिग्मा ऊपर अंदर नीचे, तो यहां से ऐसे उठ के ऊपर जाने का थोड़ा दिक्कत रहेगा ना, तो हाइट डिफरेंस रहता है. सो इधर उसका पोजीशन वाइज या हाइट वाइज डिफरेंस रहेगा. सो पोजीशन वाइज, इफ द पोजीशन ऑफ द अंदर एंड स्टिग्मा आर डिफरेंट सो दैट दे आर नॉट गोइंग टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, दिस इज कॉल्ड हेट्रोस्टाइली. इट हैपेंस इन प्राइमरोस, जास्मिन एंड लिथ्रम. देन कम्स, क्या क्या होगा? डाइकोगमी हो गया, हेट्रोस्टाइली हो गया, यूनिसेक्सुअलिटी हो गया. वन मोर डिवाइस यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज ये सेम स्लाइड है, ठीक है. एक डिवाइस में अपने आप बोल रहा हूं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. इट इज नॉट देयर इन द स्लाइड. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब अगर खुद का पोलन ग्रेन्स गिरा तो वो पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट नहीं होगा. यू नो पोलन ग्रेन्स शुड जर्मिनेट टू 2 मेल गमीट्स. लैंडिंग होने के बाद जर्मिनेट होना चाहिए 60% एंजियोस्पर्म में. अब वो नहीं होता है. अगर जर्मिनेशन नहीं हुआ तो फिर पोलिनेशन इज अनसक्सेसफुल. समझा? पोलिनेशन होता है बट फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मेल गमीट्स बाहर नहीं आएगा. सो दैट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. द प्लांट विल रिफ्यूज सेल्फ पोलन एंड विल प्रमोट दूसरे का पोलन. मतलब सेम प्लांट की दूसरे प्लांट से आ रहा है तो इट विल बी वेलकम, वार्म वेलकम देता है. पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है. अगर सेम फ्लावर की पोलन ग्रेन्स गिरा तो उसको कुछ वैल्यू नहीं देता. समझा? दैट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. तो 4 मेथड्स बताओ. यूनिसेक्सुअलिटी, इट्स एन आउटब्रीडिंग डिवाइस. देन डाइकोगमी, मतलब टाइमिंग डिफरेंट डिफरेंट रहेगा. हेट्रोस्टाइली, पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट रहेगा. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, खुद का इग्नोर करते दूसरे का प्रमोट करते. समझा? यस. So just the last topic, artificial hybridization. ह्यूमन बीइंग्स भी करते हैं ना कभी कभी पोलिनेशन जानबूझ के. दैट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. फॉर एग्जांपल, नेहा के पास ऐसा एक टोमेटो प्लांट है जो बहुत ज्यादा क्या देते हैं, यील्ड देते हैं. ऐसे इमेजिन करो. एंड उसकी टोमेटोस इतना रेड है कि अगर मार्केट में मैं वो भेजा तो आई विल गेट मोर प्रॉफिट ना. किसी का भी सबका क्या है, अट्रैक्शन सीकर है वो टोमेटो प्लांट है. हाँ,
तो ऐसे हाई यील्डिंग एंड डार्क रेड टोमेटो है उसके पास। ओके अभी देखो जियान के घर पे विजिट के लिए गया था, तो जियान के घर पे क्या रहता है, क्विक यील्डिंग, मतलब जल्दी जलने। यहाँ का तो साल में एक बार ही क्या होता है, फ्रूट होता है। हाई यील्डिंग है फिर भी, इसमें क्विक यील्डिंग है, जल्दी होता है। एंड इसमें डिसीज रेसिस्टेंस भी है, उसमें तो जल्दी बीमार होता है। सो नेहा की tomato plants, they have two good quality, which are, I need only two good qualities, which are they high yielding and it is having dark red color. जियान के पास भी जो टमाटो रहता है उसको कलर थोड़ा कम है लेकिन यील्ड भी कम है, तो भी वो डिसीज रेसिस्टेंट भी है, क्विक यील्डिंग है। तो इन दोनों की टोमेटो प्लांट्स की फ्लावर्स लेके क्रॉस पॉलिनेशन किया तो उसकी जो फ्रूट में सीड होता है वो सीड्स विल बी, सबका कैरेक्टर्स आ जाएगा ना दोनों पेरेंट्स का। इट विल बी लाइक हाई यील्डिंग भी रहेगा, क्विक यील्डिंग भी रहेगा, रेड कलर भी रहेगा, डिसीज रेसिस्टेंस भी रहेगा। मतलब सुपीरियर क्वालिटी की टू पेरेंट्स को सेलेक्ट करके उसके बीच में हम अगर पॉलिनेशन कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, टू सुपीरियर पेरेंट्स के बीच में पॉलिनेशन ह्यूमन बींग्स करवा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। समझा? ये क्यों करते हैं? प्लांट ब्रीडिंग के लिए, अच्छा अच्छा प्रोजेनीज बनाने के लिए, हाई क्वालिटी प्रोजेनीज बनाने के लिए। ठीक है, स्टेप्स ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ये प्रैक्टिकल्स में भी पूछता है। फर्स्ट स्टेप क्या है, इमेजिन दैट बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो क्या होने का चांसेस है पूर्वा? सेल्फ पॉलिनेशन होने का चांसेस है ना। मुझे क्या चाहिए, आई वांट टू डू देम क्रॉस पॉलिनेशन। तो मैं क्या करना है, फूल खिलने के पहले मैं उसका पेटल सब केयरफुली ओपन करके, मतलब बड स्टेज में ही उसका पेटल्स केयरफुली ओपन करके आई हैव टू रिमूव द आंदर्स, आंदर्स को कट करना है, बस स्टिग्मा को वहां पे रखना है। व्हाई व्हाई आई शुड डू दिस, बिकॉज अगर फूल खिलने के बाद में कट करने का सोचा तो तब तक पॉलिनेशन हो चुका होगा। सो केयरफुली रिमूविंग द आंदर्स in a bisexual flowers in the bud stage itself, that is called emasculation. तो पहले में क्या करना है, पेरेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद, पेरेंट को प्योर लाइंस बनाने के बाद आई हैव टू रिमूव द आंदर्स फ्रॉम द फीमेल, जिसके ऊपर में पॉलिनेशन करने के लिए जा रहे हैं उसका स्टिग्मा रखो, रिमूव द आंदर्स। ओके, देन इमास्कुलेशन किया, फिर में क्या करना है, मेल फ्लावर्स मतलब दूसरे प्लांट की फ्लावर्स से पोलन ग्रेन्स लेके आई हैव टू डस्ट इट ऑन द सरफेस ऑफ इमास्कुलेटेड फ्लावर। इमास्कुलेटेड फ्लावर की स्टिग्मा मैंने रिमूव किया क्या? नहीं, स्टिग्मा तो है वहां पे, उसके ऊपर डस्ट करना है डिसाइड पोलन ग्रेन। कौन करे? बटरफ्लाई नहीं, हम। ठीक है, हम किया, लेकिन हम वो फ्लावर को क्या है ऐसे खुला छोड़ दिया तो क्या हो सकता है, हम थोड़ी देर इधर उधर जाने के टाइम में क्या होगा, बटरफ्लाई आके कोई दूसरा पोलन ग्रेन आके उसके ऊपर ट्रांसफर करने का चांसेस है, कंटामिनेशन बोलते हैं इसको। ये ना इमास्कुलेशन के बाद भी हम क्या करना है, फ्लावर को प्रोटेक्शन करना है, बिकॉज ये बटरफ्लाई उसमें आके बाहर की पोलन ग्रेन डाला तो प्रॉब्लम होगा ना। सो वी हैव टू बैग द फ्लावर्स, एक पॉलिथीन बैग से अच्छे से कवर करके रखना है। सो इमास्कुलेशन के बाद भी कवर करना है, फिर बैग ओपन करके हम पोलन ग्रेन्स, डिसाइड पोलन ग्रेन्स हम ट्रांसफर करने के बाद रीबैगिंग करना है। बैगिंग, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद रीबैगिंग। समझा? इमास्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग, टैग भी करके रखना है, कब मैंने कट किया पोलन ग्रेन्स, कब ट्रांसफर किया, ये सब कुछ लिख के भी रखना है, कौन किया, कब किया, वो सब कुछ। सो यू हैव टू मेंटेन ए लेबल आल्सो। सो बैगिंग, टैगिंग, फिर रीबैगिंग, इमास्कुलेशन होने, सॉरी पोलन ट्रांसफर करने के बाद रीबैगिंग करना है। समझा? ऐसे बैगिंग करना है, फिर बाद में वो फ्लावर फ्रूट बन जाएगा, फ्रूट के अंदर सीड रहेगा, वो सीड को दोनों पेरेंट्स की कैरेक्टर्स रहेगा, दैट आई कैन टेस्ट। देखना पड़ेगा ना मिट्टी में डाल के वो प्लांट को ये क्वालिटीज है क्या, फिर वो क्वालिटीज सब है तो उसको मुझे क्या कर सकते हैं, आई विल गेट अ पेटेंट ऑफ माई सेल्फ बिकॉज मैंने ही जनरेट किया ना, देन आई कैन सेल इट इन द मार्केट ऑल्सो। दिस इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये स्टेप्स पूछता है, इमास्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग, रीबैगिंग, सब कुछ ऑर्डर में लिखने के लिए भी पूछता है, दैट यू हैव टू आंसर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। व्हाट ऑल थिंग्स वी स्टडीड? First of all, we revised male and female reproductive part. Then we studied pollination, types of pollination, autogamy, synogamy,
जिग्नोगमी, then pollinating agents के अनुसार different different adaptations पढ़ा, and finally artificial hybridization तक आके और outbreeding devices भी पढ़ के आज की lesson खत्म किया. Thank you.